Hello everyone, this is the fifth and last video on mole concept and stoichiometry, and in this video we are going to discuss very important questions which may be asked in examinations. So please watch whole video carefully. The first question is, ethane burns in oxygen to form carbon dioxide and water according to the equation 2 C2H6 plus 7O2 gives 4 CO2 plus 6 H2O. If 1250 centimeter cube of oxygen is burnt with 300 centimeter cube of ethane, calculate the volume of carbon dioxide formed and volume of unused oxygen. So let's see what is the equation. That is 2C2H6 plus 7O2 is giving 4 CO2 plus 6 H2. Now you can see the question only about the volume. It means we can use Gay-Lussac law. So what is according to Gay-Lussac law? The ratio of volume is 2:7:4 because this is water, so we don't know the state of this. So the ratio is 2:7:4. Now two volumes are given, volume of oxygen that is 1250 and volume of ethane that is 300. तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है कि कितने इथेन के लिए हमको कितना ऑक्सीजन चाहिए. So let's see. The volume is given that is 300 सेंटीमीटर क्यूब. उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे कितना ऑक्सीजन चाहिए 300 सेंटीमीटर क्यूब इथेन को बर्न करने के लिए. सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ इथेन? तो लेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नहीं पता है, बी एक्स सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ इथेन बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 2/7 अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac लॉ. नाउ द वॉल्यूम ऑफ इथेन इज गिवन दैट इज 300 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन दैट इज x. सो दैट इज इक्वल टू 2/7. सो यू कैन से 2x इक्वल टू 2100 और यू कैन से x इक्वल टू 1050. So we have got the answer. The volume of oxygen required is 1050. तो आपको मिल गया कितना? 1050 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन हमको चाहिए. सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड that is equal to 1050 centimeter cube. Now what is asked? The volume of carbon dioxide formed. So again वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन फॉर्मूला दैट इज वॉल्यूम ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2. ये आपको पता है रेशियो क्या है? 2/4 और यू कैन सिंप्लीफाई इट एज 1/2. तो वॉल्यूम ऑफ C2H6 ये कितना है? दैट इज 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2. वी डोंट नो इट, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2. तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ CO2 इंटू 1 दैट इज वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 300 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर क्यूब. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. द सेकेंड पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन. तो वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे है दैट इज 1250. तो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है 1250 सेंटीमीटर क्यूब और हमने यूज कितना किया है? दैट इज 1050. सो दिस विल बी इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज आवर आंसर. द सेकेंड क्वेश्चन इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ गैस इज नाइट्रोजन 82.35% and hydrogen 17.64%. Find the empirical formula of the gas. So how will we do this question? Again there is a method. We have to form the table. The element हमारे पास हैं nitrogen and hydrogen. The first column, second column atomic mass. So atomic mass of nitrogen is 14, atomic mass of hydrogen is 1. That is given in the question. Now the third thing is percentage composition. So percentage composition of each element. Nitrogen is 82.35
0.35% while hydrogen is 17.64%. The next column will be relative number of atoms, and relative number of atoms, that is equal to percentage composition divided by atomic mass. So it will be equal to 82.35 divided by 14 and 17.64 divided by 1. So 82.35, that will be equal to 5.89. 17.64 by 1 is equal to 17.64. Now the next column is simplest ratio of number of atoms. So that is equal to, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको सबसे छोटे नंबर से, दैट इज 5.89 से डिवाइड करके. सो इट विल बी 5.89 डिवाइडेड बाय 5.89, ये हो गया 1, और 17.64 डिवाइडेड बाय 5.89, और ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 3. तो यहाँ पे हमको सिंपल होल नंबर रेशियो मिल चुका है, तो वी हैव टू राइट सिंपल होल नंबर रेशियो. वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अब, सिंपल होल नंबर रेशियो. सो दैट इज़ ऑलरेडी 1:3. अगर ये हमको सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं होता तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता. सो व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला? द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू NH3, क्योंकि नाइट्रोजन 1 है हमारे पास एंड हाइड्रोजन 3. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज aluminum carbide reacts with water according to the following equation, that is Al4C3 plus 12H2O gives 4AlOH whole thrice plus 3CH4. What mass of aluminum hydroxide is formed from 12 gram of aluminum carbide? So we will use stoichiometry in this reaction. तो हमको पता है Al4C3 plus 12H2O is going to form 4AlOH whole thrice. तो आप चेक कर लीजिए, द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. तो प्लस 3CH4 यहाँ पे फॉर्म होता है एंड मीथेन इज अ गैस. नाउ आप देख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ मीथेन हमको कैलकुलेट करना है और साथ ही हमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास कैलकुलेट करना है. नाउ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al4C3 वो गिवन है ऑलरेडी, तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. दैट इज 144 एंड दैट ऑफ AlOH होल थ्राइस इज 78. तो सबसे पहले यहाँ पे हमको पता है 1 मोल ऑफ Al4C3 विल गिव 4 मोल ऑफ AlOH होल थ्राइस एंड 3 मोल ऑफ CH4. सो यू कैन से 1 मोल का जो मास होता है दैट इज 144, तो दैट विल बी 144 ग्राम विल गिव इट्स, कितना ग्राम हो जाएगा है, दैट इज 78 इंटू 4 ग्राम. और हमको जो मीथेन मिलेगा दैट विल बी 3 इंटू मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 16 ग्राम. तो यहाँ से आपको रिलेशनशिप पता चल गई. क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है क्योंकि मास की यही रिलेशनशिप होती है. 1 मोल का जो मास होता है दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल होता है इन न्यूमेरिकल वैल्यू. तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, वैसे ग्राम में होगा 144 ग्राम. और ये 78, क्योंकि इसका 78 मॉलिक्यूलर मास है तो मोलर मास भी इसका 78 होगा, और ये 4 मोल्स है तो इंटू 4 आपको करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू 312 ग्राम, और ये हो जाएगा 16 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 48 ग्राम. तो ये हमको रिलेशनशिप पता चल गई. अब यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. तो मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेशियो पता चल गया हमको, मास ऑफ Al4C3 बाय मास ऑफ AlOH होल थ्राइस. हमको रेशियो पता चल गया और वो रेशियो है 144/312. तो आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ AlOH होल थ्राइस. तो यहाँ से 144 इंटू मास ऑफ AlOH होल थ्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ Al4C3 जो कि आपको गिवन है वो है क्वेश्चन में व्हाट फ्रॉम 12 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड. तो आप 12 लिख सकते हो यहाँ पे.
ये हो जाएगा इंटू 312। और अगर आप मास ऑफ AlOH होल थ्राइस कैलकुलेट करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 12 into 312 divided by 144. So it will be cancelled 12, that is equal to 26 gram. So this is the solution of the first part. Now second question में आपको पूछा गया what volume of methane at STP is obtained. तो हम पहले, क्योंकि हमको वॉल्यूम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो या तो हम डायरेक्ट वॉल्यूम का रिलेशन कैलकुलेट कर लें या फिर हम पहले इसका मास कैलकुलेट कर लें और मास से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें। बट इजी हमारे लिए यही रहेगा कि इसके मास का रिलेशन इसके वॉल्यूम से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर दें। तो आपको पता है कि 144 ग्राम विल गिव 3 मोल, और 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज़ 3 इंटू 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 3 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 3 इंटू 22.4, दैट इज इक्वल टू 67.2 लीटर। नाउ अब आपको पता है कि 144 ग्राम AlC3 से मिलता है हमको 67.2 लीटर। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 144 ग्राम ऑफ Al4C3 gives 67.2 लीटर CH4। तो यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास कितना ग्राम है, 12 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा 12 ग्राम ऑफ Al4C3 विल गिव, कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी इक्वल टू 67.2 बाय 144। ये तो हो गया 1 ग्राम से, और इनटू हमारे पास 12 ग्राम है तो इतना लीटर, तो 12 that will be equal to, the next question is if 150 centimeter cube of a gas A contains X molecules, how many molecules of the gas will be present in 75 centimeter cube of B under same temperature and pressure। तो आपको पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर हमको सेम दिया हुआ है, हमको 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस ए में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दें और हमको कैलकुलेट करना है कि 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे आपको एक लॉ ध्यान में रखना है, दैट इज़ एवोगैड्रोज लॉ। तो हमने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं एवोगैड्रोज लॉ से रिलेटेड। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस ए बी सी डी कोई भी गैस हो, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो यू कैन से वॉल्यूम of gas A upon volume of gas B will be equal to number of molecules in gas A by number of molecules in gas B। तो ये रिलेशनशिप आप यूज़ कर लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ गैस ए आपको दिया हुआ दैट इज़ 150, गैस बी का वॉल्यूम आपको दिया हुआ दैट इज़ 75 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस ए दैट इज़ x, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस बी वो नहीं पता। तो आप 150 इंटू NB विल बी इक्वल टू 75x। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी विल बी इक्वल टू 75 बाई 150 इंटू x। तो ये हो जाएगा आपका NB इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा दैट इज x बाई 2। तो B के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे x बाई 2। सो दिस वॉज इजी टू सॉल्व। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाउंड ऑफ x एंड y हैज़ एन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ XY2, its vapor density is equal to its empirical formula weight, find its molecular formula। तो हमको यहाँ पे molecular formula कैलकुलेट करना है, और आपको क्या दिया हुआ यहाँ पे x और y का empirical formula XY2 है, और इसकी जो वेपर डेंसिटी है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के इक्वल है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो यहां से आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 वेपर डेंसिटी हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब ये कह रहा है कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमको सबसे पहले चाहिए वैल्यू ऑफ n। तो n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास हमको पता है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वी डी डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दैट इज इक्वल टू वी डी। सो ये आ गया हमारे पास 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको पता है दैट इज इक्वल टू XY2 होल n की वैल्यू हमारे पास 2, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास X2Y4 एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बहुत सिंपली आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, प्रोपेन बर्न्स इन एयर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज कंज्यूम्ड यूजिंग 1000 सेंटीमीटर क्यूब एयर कंसिडरिंग 20% ऑफ एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है जो वॉल्यूम है, यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं C3H8 प्लस 5O2 ये फॉर्म करता है 3CO2 प्लस 4H2। तो इसके अलावा इसमें कुछ दिया नहीं हमको सिर्फ ये दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम उसमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 20% ऑफ 1000। तो 20/100 इंटू 1000 दैट विल बी इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिल गया। अब हम रेशियो देखेंगे तो C3H8 विथ 5O2 क्या फॉर्म करता है 3CO2 प्लस 4H2। तो हमारे पास यहाँ पे 5O2 ऑलरेडी है, तो वॉल्यूम का जो रेशियो हो जाएगा 1:5:3। तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का तो नहीं कैलकुलेट करना, मुझे प्रोपेन का। तो रिएक्शन में वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन उसका रेशियो देखना है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन नहीं पता मुझे लेकिन उसका रेशियो पता है, दैट इज इक्वल टू 1/5। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मुझे पता है दैट इज 200 और ये हो जाएगा 1/5। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन 200 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू 200/5 और ये होता है 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजीली आप कर सकते हो, बस ध्यान रखिए कि 20% एयर ऑक्सीजन है तो आपको क्या करना है 20% कैलकुलेट करना पड़ेगा होल एयर का। तो दैट विल बी 20% ऑफ 1000 200 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा, बस आप गेल-लेसाइक लॉ यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो जो होगा वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो होगा। तो हमको जस्ट नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। तो मास दिया हुआ है हाइड्रोजन का दैट इज 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास जो होता है हाइड्रोजन का दैट इज ऑल्सो 2 दैट इज 1। उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है आपको क्वेश्चन में 32 बाय मोलर मास भी होता है 32, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो मैंने क्या कहा अभी, जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो होगा, क्योंकि हर गैस के एक मोल में फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये रेशियो हो जाएगा दैट इज़ 1/1 और 1:1। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था सॉल्व करना। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अ गैस कंटेन्स 12 into 10 raised power 24 molecules of oxygen gas if Avogadro's number is 6 into 10 raised power 23 mass of oxygen present in the cylinder। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले Avogadro's नंबर देखना है, दैट इज 6 into 10 raised power 23। तो ये जो 6 into 10 raised power 23 हमारे पास है, ये क्या है 1 मोल है, क्योंकि आपको दिया हुआ है ये Avogadro's नंबर है। तो Avogadro's नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। तो 1 मोल आप कह सकते हो मास ऑफ 6 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स, वो हो जाएगा दैट इज मोलर मास। और आपको पता है कि गैस कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे गैस है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो मास ऑफ 12 into 10 raised power 24 मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा 32, क्योंकि 32 तो एक मोल का है, मतलब 6 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स का है, डिवाइडेड बाय 6 into 10 raised power 23, ये एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इंटू 12 into 10 raised power 24। तो 10 raised power 23, 10 raised power 24 कैंसिल, 10 बच जाएगा, दिस इज 2, सो द आंसर इज 640 ग्राम। तो ये तो मास मिल गया हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर में। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ, सेम उसी तरीके से करना है, वॉल्यूम ऑफ 6 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मोल है और एक मोल का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 22.4 लीटर। अगेन यूनिटरी मेथड ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो वॉल्यूम ऑफ 12 into 10 raised power 24 molecules, that will be equal to 22.4 divided by 6 into 10 raised power 23 into 12 into 10 raised power 24। तो ज़रा मुझे फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 82.76% कार्बन गिवन दैट इट्स वेपर डेंसिटी इज 29, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। तो आपको पता है आप परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता है तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पे, एलिमेंट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज़ हाइड्रोकार्बन। तो हमको ये पता होना चाहिए, इसने हाइड्रोजन मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स उन्हीं को बोलते हैं जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन के होते हैं। तो एलिमेंट हमको पता चल गए, हाइड्रोजन एंड कार्बन। देन एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास जो होगा कार्बन का दैट विल बी 12, हाइड्रोजन 1। देन थर्ड कॉलम दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन जो होगा किसका, कार्बन का, दैट इज गिवन, दैट इज 82.76%। और हाइड्रोजन का जो हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा 17.24%। देन इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के हो जाएंगे, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास, सो 82.76 डिवाइडेड बाय 12। और हाइड्रोजन दैट इज 17.24 डिवाइडेड बाय 1। तो ये होता है दैट इज इक्वल टू 6.9 एंड दिस इज अबाउट 17.24। नाउ द नेक्स्ट इज simplest ratio of number of atoms। तो वो हो जाएगा जो सबसे छोटा नंबर है इन दोनों में से, दैट इज 6.9, 6.9 डिवाइडेड बाय 6.9 दैट इज 1, 17.24 डिवाइडेड बाय 6.9, सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.5। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज सिंपल होल नंबर रेशियो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है 2.5, तो इसको होल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2.5 इंटू 2 दैट इज़ 5। तो इसको भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2:5। तो हमको रेशियो मिल गया
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी मिल गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू C2, क्योंकि कार्बन के 2 एटम्स हैं, H5। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास विल बी इक्वल टू, कार्बन का हो गया 2 × 12 प्लस 5 हाइड्रोजन तो 5 × 1, तो 2 × 12 दैट इज 24 प्लस 5 दैट इज 29। अब दूसरी चीज़ आपको क्या दी है, वेपर डेंसिटी। तो आपको पता है हमको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 × 29 58। तो वैल्यू ऑफ एन क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। आपको फॉर्मूला भी लिखना है, सो दैट विल बी इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाय 29, सो दैट विल बी इक्वल टू 2। एन की वैल्यू हमको मिल गई 2। और अब हमको चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल एन। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास है C2H5 और होल एन की वैल्यू भी हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा C4H10। तो ये इतना इजी था सॉल्व करना। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2O represents the catalytic oxidation of ammonia. If 10 cm³ of ammonia is used, calculate the volume of oxygen required to oxidize ammonia completely. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गे-लुसाक लॉ फिर से यूज़ हो रहा है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन देखनी है। 4NH3 + 5O2 will give 4NO + 6H2। तो रेशियो देख सकते हैं हम वॉल्यूम का, इसके अगर 4 वॉल्यूम होंगे तो इसके 5 वॉल्यूम, इसके 4 वॉल्यूम ना। हमको रिलेशनशिप केवल इन दो के बीच में देखनी है। तो क्या कह रहा है, 10 cm³ अमोनिया हमने यूज़ किया, तो हमको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द अमोनिया कम्प्लीटली। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, उसका रेशियो क्या हो जाएगा 4/5। रेशियो डायरेक्ट हम पता कर सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अमोनिया हमको गिवन है, दैट इज 10 cm³ बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी इक्वल टू 4/5। तो यहाँ से 5 × 10 50, दैट इज 4 × वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 50। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 50/4, सो दैट इज इक्वल टू 12.5 cm³। तो ये वाला पार्ट तो बड़ा इजी था। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है अ गैस ऑफ मास 32 ग्राम, मास है गैस का 32 ग्राम और वॉल्यूम है 20 लीटर एट STP, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो न्यूमेरिकली इक्वल होगा मॉलिक्यूलर वेट के, और जिसको हम मोलर वेट या मोलर मास भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये क्या पूछ रहा है, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 32 ग्राम है और STP है। तो STP में मुझे वॉल्यूम पता है 22.4 लीटर होता है। तो 22.4 लीटर का जो मास होगा वही क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा। तो बस, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मास ऑफ 20 लीटर गैस। 20 लीटर गैस का मास दिया, दैट इज 32 ग्राम, और यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस वो क्या हो जाएगा, तो 20 लीटर का 32 है तो 1 लीटर क्या हो जाएगा 32/20, और 22.4 लीटर का क्या हो जाएगा 32/20 इंटू 22.4 ग्राम। तो आप ज़रा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। उतना ही मास जो होगा किसका, इस गैस का, वही क्या हो जाएगा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर इसका मोलर मास हो जाएगा। तो आपने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू दिस। तो ज़रा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन 82 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व। तो यहाँ पे हमको मास कैलकुलेट करना है कैल्शियम ऑक्साइड का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमको स्टोइकियोमेट्री यूज़ करनी है। तो आपको पता है यहाँ पे
अगर हम 2 मोल इसका यूज़ करेंगे तो ये भी फॉर्म होगा 2 मोल और ये फॉर्म होगा 4 मोल। नाउ अब इसका सबसे पहले क्योंकि मास है तो मास का किससे रिलेशन होता है, मोलर मास से, तो मोलर मास हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा किसका, कैल्शियम नाइट्रेट का, CaNO3 होल ट्वाइस। तो ये हो जाता है कैल्शियम का होता है 40 प्लस नाइट्रोजन दैट इज 2 इंटू 14 प्लस ऑक्सीजन का दैट इज 6 एटम्स हैं 3 इंटू 2 इंटू 16, सो दैट विल बी इक्वल टू 40 प्लस 28 प्लस 96, सो इट विल बी इक्वल टू 40 प्लस 28 दैट इज 68 प्लस 96 164। तो इसका मोलर मास हो गया 164। यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो 2 मोल्स का मास हो जाएगा दैट विल बी 328 ग्राम। और इसका हम मोलर मास फिर से इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज CaO का मोलर मास 40 प्लस 16 और वो हो जाएगा 56, लेकिन अगेन 2 मोल का हो जाएगा 112 ग्राम। अब इसका मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो इसका मास कैलकुलेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं 4 मोल्स का, क्योंकि ये 4 मोल ही फॉर्म करता है तो 4 मोल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 22.4 लीटर। तो कितना हो जाएगा दैट इज 89.6 लीटर। तो ये तो हो गया आपका वॉल्यूम। नाउ अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कितना फॉर्म होगा जब 82 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट हीट किया हमने। तो जस्ट यूनिटरी मेथड यूज़ करना है यहाँ पे। कैसे, 328 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितना फॉर्म करता है, गिव्स 112 ग्राम। तो यहाँ पे दिख रहा है 328 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट 112 ग्राम CaO फॉर्म करेगा। तो 82 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट विल गिव कितना, दैट विल बी इक्वल टू 112। ये तो किसके लिए है, 328 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट कितना फॉर्म करेगा, 112 बाई 328 इंटू 82 ग्राम CaO। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड यूज़ करना है। तो इसका आंसर मुझे बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में कि क्या आ रहा है इसका आंसर, क्या होगा इसका मास। नाउ द सेकेंड पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अगेन हमको यूज़ करना है यूनिटरी मेथड कि 328 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट वो कितना फॉर्म करता है, गिव्स। तो 328 से कितना वॉल्यूम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप मास और वॉल्यूम में है, इसीलिए मैंने इसका मास ही कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं था। तो कितना लीटर फॉर्म करता है, 89.6 लीटर ऑफ NO2। तो आपको ये बताना है कि 82 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट विल गिव कितना वॉल्यूम, 89.6 डिवाइडेड बाय 328 इंटू 82 लीटर ऑफ NO2। तो ज़रा मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। तो दोनों आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 विल गिव N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3 और आपको कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 दैट इज अमोनियम डाइक्रोमेट इन if 63 gram of ammonium dichromate is heated, quantity in moles of nitrogen, then volume of nitrogen evolved and mass of Cr2O3 formed in gram। तो सबसे पहले हम बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर इसका 1 मोल है हमारे पास तो इसका भी 1 मोल फॉर्म होगा, इसका 4 मोल और इसका 1 मोल। तो सबसे पहले मोलर रिलेशन देखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अब आपको क्या क्या पूछा गया है, क्वांटिटी इन ग्राम पूछा गया है। तो किसकी क्वांटिटी पूछी गई है, इसकी क्वांटिटी पूछी गई है ग्राम में। तो सबसे पहले आपको मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसका, अमोनियम डाइक्रोमेट का। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का मोलर मास हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। तो ये कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन के कितने एटम्स है, 2। तो 2 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन के 4 इंटू 2 8 एटम्स हो गए, तो 8 इंटू 1 प्लस क्रोमियम के 2 तो 2 इंटू 52। क्रोमियम का एटॉमिक मास होता है 52 प्लस 7 इंटू 16। तो ये हो गया हमारे पास 28 प्लस 8 प्लस 52 इंटू 2 दैट इज 104 प्लस 7 इंटू 16 दैट इज 112। तो ये कितना हो जाता है हमारे पास, 28 प्लस 8 दैट इज 36 प्लस 104 140 प्लस 112 दैट इज 252 ग्राम।
तो अगर मैं 252 ग्राम यूज़ करूँगा, बाकियों का मास मेरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या हमको कैलकुलेट करना है। साथ में हमको क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ Cr2O3 फॉर्म्ड। तो Cr2O3 फॉर्म्ड कितना होगा, दैट विल बी, पहले इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो Cr2O3 का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2 × 52 प्लस 3 × 16, तो दैट इज इक्वल टू 104 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 152 ग्राम। तो यहाँ से मिलता है मुझे 152 ग्राम। तो अब आपको क्या पूछा गया है, क्वांटिटी इन मोल्स ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इफ 63 ग्राम ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। तो नंबर ऑफ मोल्स का आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास दैट इज 63 ग्राम बाय मोलर मास। मोलर मास आपको पता है दैट इज 252 ग्राम। तो दैट विल बी इक्वल टू, वैसे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1/4, तो ये हो जाएगा 0.25 मोल। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी इन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट विल गिव 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो 0.25 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट विल गिव 0.25 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका भी आंसर मिल गया मुझे, दैट इज 0.25 मोल। अच्छा, अब तीसरी, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इवॉल्व एट STP। तो आपको पता है हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, 0.25 मोल। तो वैसे आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो और जस्ट मोल से भी कर सकते हो। तो आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो मुझे 0.25 मोल्स का वॉल्यूम बता देंगे STP पे, तो वो क्या मिल जाएगा मुझे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इवॉल्व एट STP। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मास ऑफ Cr2O3 फॉर्म्ड इन ग्राम। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट विल गिव 1 मोल ऑफ Cr2O3। तो 0.25 मोल्स ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट विल गिव 0.25 मोल्स ऑफ Cr2O3। तो 0.25 मोल्स कैलकुलेट करने के लिए 152 × 0.25 कर सकते हो, या फिर आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, 252 ग्राम विल गिव 152 ग्राम। तो 252 ग्राम अमोनियम डाइक्रोमेट कितना फॉर्म करता है, गिव्स 152 ग्राम ऑफ Cr2O3। तो हमारे पास कितना है, 63 ग्राम। तो 63 ग्राम ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट कितना फॉर्म करेगा, NH4 होल ट्वाइस Cr2O3 विल गिव कितना फॉर्म करेगा। तो यूनिटी मेथड से भी आप कर सकते हो, दैट इज 152/252 × 63। सो टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल से भी कर सकते हो, और अगर आप लोगों को नंबर ऑफ मोल से समझ में नहीं आ रहा तो आप जस्ट यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए, दैट इज द बेस्ट मेथड। उससे आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में, और साथ ही अगर मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में भी आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है, और वो आपको ऑलरेडी पता है फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 90 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो हमको सेम गेली-लुसाक लॉ यूज़ करना है। तो कितना है हमारे पास, इसका वॉल्यूम का जो रेशियो होगा दैट इज 2 वॉल्यूम, तो इसके लगेंगे 13 वॉल्यूम। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ C4H10 बाय वॉल्यूम ऑफ O2। वो रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज 2/13। तो C4H10 का वॉल्यूम मुझे दिया, दैट इज 90 बाय वॉल्यूम ऑफ O2, ये नहीं पता है मुझे, तो दैट इज इक्वल टू 2/13। तो 2 इंटू आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 13 इंटू 90, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू 13 इंटू 90/2 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और सेकंड पार्ट इसका जो है दैट इज वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 8। तो वेपर डेंसिटी हमको दी हुई है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 24 ग्राम ऑफ गैस एट STP। तो वेपर डेंसिटी हमको पता है, वेपर डेंसिटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा,
मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है 8, दैट इज 16। तो मॉलिक्यूलर मास मिल गया मुझे गैस का, दैट इज 16। तो गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है 16, और आपको पता है मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। तो और मोलर मास का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर एट STP। तो आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ गैस एट STP, वो कितना हो जाएगा, दैट इज 22.4 लीटर। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, मॉलिक्यूलर मास होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और ये हुआ 16। मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकली इक्वल होता है मोलर मास के, तो इसका मतलब उसका मोलर मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल का मास 16 ग्राम है, और 1 मोल का वॉल्यूम आपको पता है दैट इज 22.4 लीटर। तो इसका मतलब 16 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर हो जाएगा। तो जस्ट आपको रिलेट करना है। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ 24 ग्राम ऑफ गैस एट STP। बस फिर से यूनिटरी मेथड आ गया, तो दैट इज 22.4 बाई 16, ये 1 के लिए हो जाएगा, इंटू 24, 24 के लिए हो जाएगा। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड बाय हीटिंग KClO3 यूजिंग MnO2 एज कैटलिस्ट, और रिएक्शन आपको दी है दैट इज 2 KClO3 विल फॉर्म 2 KCl प्लस 3O2। MnO2 यहाँ पे कैटलिस्ट है, तो इसका फिलहाल इक्वेशन में कोई यूज नहीं है। नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6.72 लीटर ऑफ O2। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि 6.72 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना KClO3 चाहिए। तो यहाँ पे एट STP भी होगा, तो STP पे आपको कैलकुलेट करना है ना। तो सबसे पहले आपको मास कैलकुलेट करना है, तो हमको KClO3 के मास और O2 के वॉल्यूम के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका मोलर मास हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ KClO3, तो दैट विल बी इक्वल टू 39 फॉर पोटेशियम प्लस 35.5 फॉर क्लोरीन प्लस 3 इंटू 16 फॉर ऑक्सीजन। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 39 प्लस 35.5, दैट इज 74.5 प्लस 48, so that will be equal to 122.5 ग्राम। तो ये तो इसका मोलर मास मिल गया, लेकिन हमको पता है यहाँ पे 2 मोल्स लगते हैं। तो आप चाहो तो इक्वेशन लिख लो, दैट इज 2 KClO3 विल गिव 2 KCl प्लस 3O2। तो आपको 122.5 मोलर मास मिल गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो मास कितना लगेगा, दैट इज 122.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 249 ग्राम। तो 249 ग्राम से आपको मिलता है 3O2, तो 3 मोल ऑक्सीजन के मिलते हैं आपको। तो आपको पता है 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम, क्योंकि हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना आता है 22.4 लीटर। तो 3 मोल का क्या हो जाएगा, दैट इज इंटू 3, तो ये हो जाएगा 67.2 लीटर। तो दैट इज 67.2 लीटर। तो ये 3 मोल्स का वॉल्यूम हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि 249 ग्राम KClO3 गिव्स 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ KClO3। तो आपको कैलकुलेट करना है 6.72 लीटर O2 विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आपको पता है कि 67.2 लीटर के लिए हमको चाहिए 249 ग्राम। तो 6.72 के लिए कितना चाहिए होगा, दैट इज 249 डिवाइडेड बाय 67.2 इंटू 6.72। तो आप ज़रा जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। उसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अबव वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी आपको कैलकुलेट करने हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि मुझे केवल वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है वो है 6.72 डिवाइडेड बाय 22.4। तो आपको
नंबर ऑफ मोल्स मिल गया यहाँ से ऑक्सीजन का। तो इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि आपको पता है एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर मेरे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी मोल्स होंगे, अगर 2 मोल आए तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर x मोल्स होंगे तो x इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और नंबर ऑफ मोल्स मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेपर डेंसिटी आपको कार्बन डाइऑक्साइड की ऑलरेडी पता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, दैट इज कार्बन 12 और ऑक्सीजन O2 16 इंटू 2 दैट इज 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 44, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 44/2 22। तो इसको आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। तो वेपर डेंसिटी जो होगी दैट इज 22। अब हम कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड। इक्वेशन आपको दी हुई है, दैट इज P + 4HNO3 concentrated will form H3PO4 + H2O + NO2. If 9.3 gram of phosphorus was used in reaction, calculate number of moles of phosphorus taken. तो number of moles कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहला पार्ट जो है इसका दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस। तो आपको पता है फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 31। तो आपको पता है 1 मोल है, तो 1 मोल मतलब 31 ग्राम। तो दैट इज इक्वल टू मास कितना है 9.3 डिवाइडेड बाय 31। तो आप जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। सेकंड पार्ट है इसका मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म। तो आपको पता है 31 ग्राम फॉस्फोरस से कितना ग्राम फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म होगा, तो उसके लिए आपको पता है 1 मोल इसका 1 मोल फॉर्म करेगा। इसका कोफिशिएंट भी आपको देखना है। मोलर मास ऑफ H3PO4 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 1 हाइड्रोजन के लिए प्लस 31 फॉर फॉस्फोरस प्लस 4 × 16 दैट इज इक्वल टू 3 + 31 + 64। 3 + 31 दैट इज इक्वल टू 34 + 64। तो ये हो गया हमारा 98 ग्राम। तो हमको मिल रहा है 98 ग्राम ऑफ H3PO4। तो हमको पता है 31 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस विल गिव 98 ग्राम ऑफ H3PO4। तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे। 31 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस गिव्स 98 ग्राम H3PO4। तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी है फॉस्फोरस की, दैट इज 9.3 ग्राम। तो 9.3 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस विल गिव 98 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 9.3 ग्राम ऑफ H3PO4। तो इसका भी मुझे आंसर बताइए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो आपको H3PO4 की क्वांटिटी भी पता चल गई, मास पता चल गया उसका। तीसरा पार्ट जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट STP। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फॉस्फोरस 31 ग्राम, क्योंकि मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। तो इसका 1 मोल इसके 5 मोल्स फॉर्म करता है। यहाँ पे ध्यान रखिए 5 मोल्स ऑफ NO2 इज फॉर्म्ड। तो 5 मोल फॉर्म करता है। और आपको पता है 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर एट STP। तो 5 मोल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज 5 × 22.4 लीटर। तो ये हो जाएगा आपका 112 लीटर एट STP। तो तीसरा पार्ट आप कर लीजिए। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल गया कि 31 ग्राम फॉस्फोरस से हमको 112 लीटर NO2 मिलेगा। तो 31 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस गिव्स 112 लीटर ऑफ NO2। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे 9.3 ग्राम से। तो 9.3 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस विल गिव कितना फॉर्म करेगा ये, दैट इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 31, ये तो 1 ग्राम के लिए हो जाएगा, इंटू 9.3 लीटर ऑफ NO2। तो आप इसकी वैल्यू भी बताइए कि नाइट्रोजन का क्या वॉल्यूम होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 44.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इक्वेशन आपको गिवन है।
तो आपको रेशियो पता चल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म। तो यहाँ पे केवल हमको वॉल्यूम का ही रेशियो पता करना है, तो हमको गेली-साइक लॉ यूज़ करना है। तो आपको 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो आपको रेशियो पता चल गया। नाउ अब हमको पता है कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो 67.2 लीटर है और नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है वो है 44.8 लीटर। तो हमको पता है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड इन रिएक्शन वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इंटू 3 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो होना चाहिए वो 1/3 होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का। तो आपको पता है हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना दिया आपको, 67.2। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 67.2/3। तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो लग रहा है दैट इज 22.4 लीटर। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे मुझे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है 44.8 लीटर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर से देख लीजिए। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 44.8 लीटर रखता, मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 44.8 लीटर रखता, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मुझे वहाँ से मिलता 3 × 44.8 दैट विल बी इक्वल टू 89.6 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मुझे मिलता है 89.6 लीटर, लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन केवल कितनी है, 67.2 लीटर। तो इसका मतलब जितनी मेरे पास हाइड्रोजन है उससे ज़्यादा तो मैं यूज़ कर नहीं सकता। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन कितनी यूज़ कर सकते हैं, 67.2 लीटर। और उसके लिए कितनी नाइट्रोजन कंज्यूम होगी, दैट इज 22.4 लीटर। तो इसका मतलब 22.4 लीटर नाइट्रोजन के साथ 67.2 लीटर हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगी। उसके बाद तो हाइड्रोजन बचेगी नहीं, तो फर्दर रिएक्शन होगी नहीं। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि जो वॉल्यूम है नाइट्रोजन का, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम्ड वो केवल कितना होगा, कंज्यूम्ड, दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब आपको पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म, तो वही अब हम यूज़ कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम। तो नाइट्रोजन भी आप यूज़ कर सकते हो और हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हो अपॉन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो आपको पता है रेशियो कितना है, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ NH3 मिल गया आपको यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 2 × वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम्ड। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं 22.4, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इसको, 44.8 लीटर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का कंज्यूम्ड वॉल्यूम, क्योंकि जितनी नाइट्रोजन यूज़ होगी उसी के हिसाब से अमोनिया फॉर्म होगी। अब नाइट्रोजन भले ही मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास नाइट्रोजन 44.8 लीटर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 44.8 की 44.8 लीटर पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई। तो इसीलिए हम केवल पहले चेक करेंगे कि कितनी नाइट्रोजन कंज्यूम हुई है। अब क्योंकि मेरे पास और हाइड्रोजन नहीं थी बाकी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो बाकी की नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, बच जाएगी। हमारे पास नाइट्रोजन थी कितनी, 44.8 लीटर, और यूज़ कितनी की हमने, 22.4 लीटर। तो सेकंड पार्ट में वो यही पूछ रहा है, व्हाट इज द अदर सब्सटेंस इफ एनी रिमेन्स इन द मिक्सचर। अगर कुछ और भी बचता है तो हाइड्रोजन तो पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई, 67.2 लीटर हाइड्रोजन 22.4 लीटर नाइट्रोजन के साथ कंज्यूम हो जाएगी। तो हाइड्रोजन तो खत्म हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन अभी बच जाएगी। तो आपको वही बताना है कि अगर कुछ और बचेगा तो क्या बचेगा। तो हमारे पास बचेगा नाइट्रोजन, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, उसका भी वॉल्यूम बताना है मुझे, रिमेन्ड। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितनी बच जाएगी, दैट इज इक्वल टू 44.8 जो हमारे पास एक्चुअल में थी, माइनस जितनी हम यूज़ कर चुके हैं, जितनी खत्म हो चुकी है, तो बची कितने, 22.4 लीटर। सो this is the solution of this question. The next question is, varieties of LPG are marketed including a mixture of propane and butane. तो इसमें मिक्सचर है प्रोपेन और ब्यूटेन का, 60% propane and 40% butane. If 10 liter of this mixture is burned, find the total volume of carbon dioxide added to the atmosphere. तो आपको ये बताना है कि अगर 10 लीटर इसको बर्न किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ऐड होगा एटमॉस्फेयर में। तो आपको इक्वेशन दी गई है, ये प्रोपेन की हो गई और ये ब्यूटेन की हो गई। तो आपको पता है कि जो मिक्सचर है उसमें 10 लीटर क्या है, टोटल मिक्सचर है, और 40% उसमें से ब्यूटेन है और 60% प्रोपेन है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन कितना हो जाएगा, दैट इज 60% ऑफ टोटल, दैट इज 6 लीटर। और अगर वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन हम कैलकुलेट करना चाहें,
जो सेपरेट निकलेगा STP पे, तो वो निकलेगा 40/100 इंटू 10 दैट इज़ 4 लीटर। तो दोनों का हमको वॉल्यूम मिल गया यहाँ पे 10 लीटर में से। अब हम क्या करेंगे, हम गेली-लुसाक लॉ यूज़ करेंगे। कैसे? क्योंकि आपको पता है इसका अगर 1 वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं, 1 वॉल्यूम, तो इसके 5 वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड से लेना देना है, तो 3 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे। और अगर इसके मैं 2 वॉल्यूम यूज़ करता हूँ तो इसके 8 वॉल्यूम फॉर्म होंगे। तो हम बस गेली-लुसाक लॉ यूज़ करेंगे और वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन C3H8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2। किससे? प्रोपेन से जो फॉर्म होगा वो कितना है, 1/3। तो वॉल्यूम ऑफ C3H8 मुझे पता है, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 6 बाय वॉल्यूम ऑफ CO2। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 मिल गया मुझे यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6, ये हो जाता है 18 लीटर। तो 18 लीटर मुझे किससे मिलेगा, प्रोपेन से। अब लेकिन ब्यूटेन भी है, तो अब ब्यूटेन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वही CO2 बाय वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या हो जाएगा, या आप वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन दैट इज C4H10 बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि रेशियो आपको पता है दैट इज 2/8। तो 2 वॉल्यूम इसके हैं और 8 वॉल्यूम इसके हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। और वॉल्यूम ऑफ C4H10 वो आपको पता है, वो है 4 लीटर, 4 बाय वॉल्यूम ऑफ CO2, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/4। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 मिल गया यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 16 लीटर। अब यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम प्रोपेन दैट इज 18 लीटर, तो और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड फ्रॉम ब्यूटेन वो है 16 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, जितना प्रोपेन से फॉर्म हुआ था दैट इज 18 प्लस जितना कार्बन डाइऑक्साइड ब्यूटेन से फॉर्म हुआ 16, सो दैट विल बी इक्वल टू 34 लीटर। So this is how we can solve this question. The last question is 4.5 mole of calcium carbonate are reacted with dilute hydrochloric acid. Write the equation for the reaction. तो सबसे पहले हम लोगों को इस रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो HCl ये क्या फॉर्म करेगा, दैट इज CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी जरूरी है। तो हमको सबसे पहला पार्ट जो है ये मिल गया कि इक्वेशन हमको लिखनी थी, तो हम इक्वेशन लिख चुके हैं। सेकंड है व्हाट इज द मास ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपको मास कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है अगर इसका हम 1 मोल, रेशियो हमको जरूर पता होना चाहिए रिएक्शन में, तो इसके हमको 2 मोल लगेंगे और इसका 1 मोल फॉर्म होगा और इसका भी 1 मोल फॉर्म होगा और इसका भी 1 मोल फॉर्म होगा। तो बस इस रेशियो को आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 4.45 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मास ऑफ, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे पहले, मोलर मास ऑफ, तो एक तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड है मोलर मास ऑफ CaCO3 दैट इज इक्वल टू कार्बन, कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 इंटू 16, ये हो गया हमारे पास 40 प्लस 12 दैट इज 52 प्लस 3 इंटू 16 48, वो हो गया 100 ग्राम। तो 1 मोल का मास होता है मोलर मास। तो मास ऑफ 4.5 मोल ऑफ CaCO3 वो क्या हो जाएगा, दैट इज 4.5 इंटू मास ऑफ 1 मोल कितना 100, तो वो हो गया 450 ग्राम। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड एट STP। नाउ अब कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वो भी STP पे। तो मुझे पता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर एट STP। तो आप कह सकते हो कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट क्या फॉर्म करता है, फॉर्म्स 22.4 लीटर CO2 एट STP। तो मुझे कितना
मोल पता है मुझे, दैट इज 4.5 मोल। तो 4.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना फॉर्म करेगा, दैट इज 22.4 इंटू 5 लीटर ऑफ CO2। तो इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो तीसरा पार्ट भी आपको पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना फॉर्म होगा। चौथा पार्ट है आपके पास, व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म्ड। अब यहां पे देखिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म्ड दैट इज इक्वल टू 4.5, क्योंकि एक मोल से एक ही मोल फॉर्म होता है, तो 4.5 से कितना फॉर्म होगा, 4.5 मोल। तो मास ऑफ CaCl2 फॉर्म्ड, तो दैट विल बी इक्वल टू 4.5 इंटू मोलर मास। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, एक मोल का जो मास होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू 4.5 इंटू मोलर मास। देख लीजिए 40 प्लस Cl2, तो 35.5 इंटू 2 दैट इज 71। तो 40 प्लस 71 हो गया 111, तो ये हो जाएगा 111। तो इसका भी मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द लास्ट इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर यूज्ड इन द रिएक्शन। तो आपको पता है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के लिए लगते हैं 2 मोल HCl। तो 4.5 फिफ्थ पार्ट 4.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्स कितना, 2 इंटू 4.5 मोल्स ऑफ HCl। तो डबल हो जाएंगे क्योंकि एक मोल के लिए 2 मोल लगते हैं, तो 4.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 4.5 इंटू 2 मोल दैट इज इक्वल टू 9 मोल ऑफ HCl। तो 9 मोल HCl के लगेंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। तो अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।